Hello guys, welcome to the session. And in that session, जो आज हम करने वाले वो है linear equation. So I hope most of you have watched a previous session जहाँ पे हमने discuss किया था what is the syllabus, and we have busted some myths also. And to be honest, ऐसा कोई syllabus है नहीं जो you are thinking कि चलो syllabus हो. ठीक है, हमने वही बताया there is a topic which the cat is going to test, like some areas there they we have found from the past year trends. So उसके अकॉर्डिंग ही हम पढ़ते हैं. ठीक है, एंड जैसे कि those who are new to the session, so for their overview, I would like to show what is the important topics. So these are the important topics. The cat going to test your knowledge in these areas, and there is as such no syllabus. So if you are following some like books and all, it's okay, you can follow, you can practice a question from them, but as such there is no syllabus. The cat is going to test only your knowledge, and the cat questions are not a typical, like a simple question. ऐसे नहीं रहता कि आप जो रहता है ना टिपिकल क्वेश्चन रहते हैं, जैसे 10 लाइन का क्वेश्चन है, आपको एकदम पूरा स्टेप वाइज सॉल्व करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे. द क्वेश्चंस आर मोस्टली लॉजिकल. Okay, and yeah, in last year we have found some question which is lengthy to solve, but if you know the logics and the basics, you can solve it easily. That's why the focus of these sessions is to create your build your knowledge and a basic, so that you can solve the tougher questions. No matter what question will come, you can easily solve it. So that's why in this series we are going to cover all the basic. Okay, hope it is clear. So these are the topics. So we are going to start from a linear equation, and maybe day after tomorrow we will take a simple equations, and then special equations. Okay, you can say simple equation was similar, ये साथ में आ जाएंगे ये. Special equation we will take a day after tomorrow. Okay, and these are some important topics जो कि हम सारे cover करने वाले हैं in algebra. Also, a disclaimer, those who are watching the recording, I would recommend you to watch at 1.25x or 1.5x, क्योंकि मैं थोड़ा slow बोलता हूँ. ठीक है, live कर रहे तो यार you have no options, but you are watching recording, you have option to watch at 1.5x or 1.25x. Okay, so जो आज का agenda था, the today's agenda is we have to look for linear equation. Linear equation है क्या? Okay, so how many of you are from a maths background, or those who have studied maths in your 11th 12th? कितने लोग? क्या मतलब, मैं अकेले ही पढ़ा था मैथ? गौतमन. ओके, ओनली गौतमन. भाई अभी तो पढ़ाना चालू भी नहीं किया, क्या हो गया? पूजा ऑल्सो. ओके, अभ्युदय भी ऑल्सो. ओके, जिसने नहीं पढ़ा, नो वरीज. We will try to cover all the basic here. So let's start with the basic part. Initial 20 minutes I will take to cover some basics, then we will jump to the questions. What kind of questions is there? So when it comes to linear equation, what is exactly linear equation? Let's delete this linear part. हटाओ इसको. Let's come first to equation. What is the equation? तो इक्वेशन होता क्या है? तो मैं ज्यादा डीपली ज्ञान नहीं दूंगा इस पे, कि आपको ही पता है इक्वेशन क्या होता है. सो व्हेन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, जब हम कांस्टेंट वैल्यू को एंड वेरिएबल्स को लाइक किसी काइंड ऑफ व्हाट वी से ऑपरेशन में यूज करते हैं. ऑपरेशन मीन्स किसी का सर्जरी नहीं करना है. ऑपरेशन इज काइंड ऑफ थिंग, प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, दिस इज व्हाट ऑपरेशन. जब हम कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों का हम यूज किसी ऑपरेशन में करते हैं, लाइक लेट्स से दिस इज कांस्टेंट 2, 3 and 4, and these are the variable x, y and z. Now I'm using this thing with a variable operation, like I'm using a 2x plus 3y minus 2 divided by 4z equal to xyz जो भी है. So now this will going to become a equation. इसे हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं. ठीक है,
होप इट इज क्लियर ये क्या बोल रहा हूँ। जस्ट अ बेसिक, ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा, ये ज्यादा कुछ भारी तो है नहीं। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। नाउ अब व्हेन नाउ कम टू लीनियर इक्वेशन। अब इक्वेशंस के भी टाइप होते हैं। इक्वेशन के टाइप होते हैं, वी जज द इक्वेशन बाय देयर ऑर्डर। ऑर्डर नॉट, लेट्स से ऑर्डर नहीं करते, डिग्री। डिग्री से हम जज करते कि इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है। लेट्स से डिग्री मीन्स व्हाट, सिंपल, इन शॉर्ट, पावर ऑफ वेरिएबल। दिस इज व्हाट वी कॉल से डिग्री। Okay, power of variable, or not only power, we can say highest power of variable. Highest power of variables. So let's say there is an equation 4x plus 2y. Let's say एक ही वेरिएबल रखते हैं अभी के लिए समझने के लिए। 2x square plus 2 is equal to 0. Now see this equation and do let me know what is the degree of equation. इसका डिग्री क्या है, बताओ भाई। 2। ओके, दैट्स ग्रेट, एटलीस्ट बेसिक तो क्लियर है भाई। दिक्कत नहीं, चलो अच्छा लगा। इतना आ रहा है तो मतलब यार टेंशन की बात नहीं है अब। सो या, द डिग्री इज 2। ओके, बिकॉज as I mentioned, the highest power of variable. So here you see the highest power of variable is 2. It means the degree of this equation would be 2. Okay. So इसके बेसिस पे हम जज करते हैं कि इक्वेशन कौन सा है। अगर इक्वेशन की डिग्री अगर मान लो, लेट्स से डिग्री अगर 1 है, डिग्री के लिए मैं कुछ ले लेता हूँ, डी लिख लेता हूँ। डिग्री अगर 1 है, छोड़ो डी भी नहीं लिखता, नहीं तो बोलेंगे डिटर्मिनेंट हो गया या डिस्क्रिमिनेंट हो कुछ है। अगर डिग्री 1 है, इट मीन्स द इक्वेशन इज, वी कॉल द इक्वेशन लीनियर। अगर सिर्फ ऐसे लिखा रहता 4x plus 2 इज इक्वल टू 0, इट मीन दिस इज द पावर इज 1। पावर 1 है मतलब कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। डिग्री 2 है तो वो कौन सा इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री 3 हो गया, इट मीन्स द इक्वेशन वुड बी क्यूबिक इक्वेशन। डिग्री 4 हो गया तो इक्वेशन कौन सा बन गया आपका, क्वार्टिक। या तो क्वार्टिक बोलते हैं या फिर वी वुड से बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक। होप इट इज क्लियर यहाँ तक, किसी को डाउट नहीं कि ये कैसे हम फाइंड आउट करते कि कौन सा इक्वेशन क्या है। वी विल फाइंड द नेम ऑफ द इक्वेशन, जो है वो हम उसके हाईएस्ट पावर या कि उसकी डिग्री से हम जज करते हैं कि वो कौन सा इक्वेशन है। डिग्री अगर 2 है, इट मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक। डिग्री 1 है, इट मीन्स लीनियर। डिग्री 3 है, इट मीन्स क्यूबिक। डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। अब इससे ऊपर गया कोई तो भाई उसका नाम नहीं है। दीज आर सम इक्वेशन जिसका हमने नेमिंग कर दिया, स्पेशल नेमिंग। उसके ऊपर गया तो आप, वी सिंपली से हायर डिग्री या फिर हायर ऑर्डर। ओके, डिग्री एंड ऑर्डर भी कहा जाता है, तो उतना डिप में नहीं जाते, जब हम पढ़ेंगे तो उस पर जाएंगे। सो यार, होप द लीनियर इक्वेशन पार्ट इज क्लियर। ना लीनियर इक्वेशन में भी अब क्या होता है, अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा, एट्थ में सबसे पहले आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा। नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो टू वेरिएबल्स मीन व्हेन यू यूज टू वेरिएबल लाइक 4x plus 3y, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लाइक दो वेरिएबल आ गए, एक x है, दूसरा वेरिएबल y है। अगर यहाँ पे एक और वेरिएबल अगर ऐड कर दूं मैं, लेट्स से z, तो ये कितना हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स। होप इट इज क्लियर कि वेरिएबल्स किसे कहते हैं। चलो ये बताओ, वेरिएबल कांस्टेंट में किसी को इशू नहीं है ना, वेरिएबल्स किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं। अगर इशू नहीं है तो आगे बढ़ता हूँ मैं। चलो, आई होप किसी को इशू नहीं है। ग्रीन पेन अच्छा लगता है मुझे, तो ग्रीन ले लो। क्या, नाउ किसी भी वेरिएबल के आगे जो वैल्यू होती है ना, कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट वैल्यू, किसी भी वेरिएबल के आगे जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, लेट्स से y के आगे में कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 3। सिमिलरली z के आगे में कांस्टेंट वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब क्या है, वहां पे 1 है, देर इज अ 1। ठीक है, कुछ नहीं है मतलब वहां पे 1 है अभी के लिए। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। इसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। लाइक अगर मैं पूछ लूं कोफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, यू कैन सिंपली से द कोफिशिएंट ऑफ x इज 4। अगर यहाँ पे मैं ऐसे इक्वेशन दूं, लेट्स से x स्क्वायर माइनस
3x plus 4 is equal to 0. Now, if I am asking you, what is the coefficient of x square? चलो चैट बॉक्स में बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1 1 1 1 1 1। चलो दैट्स ग्रेट। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1, बिकॉज क्या कुछ नहीं है, मतलब देखो किसी का कुछ नहीं, उसका भगवान होता है, तो इसका भगवान कौन है? इन लोग का 1। जिसका कोई नहीं उसका भगवान। ठीक है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स? भाई 4 कहाँ से आएगा हम? मैं मार्स पे चला गया हूँ क्या, कि 4 आने लग गया? या फिर आप चले गए मार्स पे? 4 नहीं आएगा भाई, 4 तो बाहर हो गया। देखो, नॉट 3, हियर इज द ट्विस्ट। जब हम 1 लिख रहे हैं, इसका कुछ नहीं है, मतलब इसके आगे भी कुछ तो होगा, इसके आगे प्लस है, इसका मतलब +1 की हम बात कर रहे हैं। इस यहाँ पे क्या साइन है? -3। तो जिसने भी -3 बोला है, लाइक अभ्युदय, प्रतिष्ठा, यू गाइस आर करेक्ट। अवनीत ऑल्सो। बट इनिशियली आप लोग ने 3 बोला था, अवनीत आपने भी। नॉट 3, द -3 इज द करेक्ट। ओके, होप इट इज क्लियर। 3 नहीं बोलना, आप किसी ने पूछा अगर उसके आगे साइन अगर माइनस है तो माइनस बोलना है। ओके, डोंट इग्नोर माइनस। क्या मतलब मेरे वीआर से मार्क्स माइनस में आ रहे तो मैं इग्नोर कर दूं उसको? ऐसा नहीं है गाइस। भले ही मेरे मार्क्स वीआर से माइनस आते हैं, फिर भी मैं उसको लाइव अटेम्प्ट करता हूँ। बेइज्जती करवाने का शौक है मुझे। दिस इज द -3। ओके, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0? अब ये किसी ने पूछा नहीं मुझे, इक्वेशन में तो x टू द पावर 0 है ही नहीं। ये भी बताओ बोलना, ऐसा किसी ने पूछा ही नहीं। नो वन आस्क्ड मी लाइक इन इक्वेशन देयर इज नो x टू द पावर 0। Okay, so yeah, those who got the point, they, they are right. Like the 4 is the answer. The answer should be 4. Now, अब बोलेंगे x to the power 0 आपने लिखा क्यों नहीं फिर? ये तो गलत बात है, आपने लिखा नहीं वहां पे। तो सी गाइस, 4 into x to the power 0. So this is a very common, if we learn in this we will learn in the laws of indices. Okay, indices मतलब कुछ नहीं होता, पावर को indices बोलते हैं। ठीक है, indices या इंडेक्स बोलते हैं, indices। सो किसी भी वेरिएबल का, किसी का भी अगर पावर 0 हो गया ना, किसी का भी मतलब किसी का भी, 2 का पावर भी अगर 0 कर दूं मैं, इन सबका मतलब एक ही होता है, 1। यस, ये सब नहीं, उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी का भी पावर अगर मैं 0 कर दूं, मैं बोल रहा सुमित, वो सुमित, अरे मैं खुद हूँ सुमित, ठीक है। इसका पावर अगर 0 हो गया, इट मीन्स 1। गॉट इट? तो किसी का भी पावर 0 हो गया, इट मीन्स उसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब क्योंकि वहां पे वैल्यू 1 हो गई है ऑलरेडी, इसके साथ कुछ नहीं, अभी मैंने बताया किसी के पास कुछ नहीं है, मतलब उसके साथ 1 तो हमेशा साथ में। इट मीन्स हियर देयर इज 1, एंड 1 इज नथिंग बट x टू द पावर 0। तो x टू द पावर 0 है, तो किसने पूछ लिया कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, इट मीन्स 4। होप गाइस दिस इज क्लियर। बेसिक है बट इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हो, आप में से ही बहुत लोग गलत कर रहे हो। नो वरीज, गलती होती है सीखते ही। मैं भी करता था पहले गलती। मैं तो लोग को पागल करता था, x टू द पावर 0 है ही क्यों, मैं पूछता था। ओके, सो या ऑल्सो whenever we write a equation, जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं, we follow some metrics like, कोई मैट्रिक्स मूवी मत बोल देना कि मैट्रिक्स मूवी हम फॉलो कर रहे हैं, नहीं। वी फॉलो लाइक डिसेंडिंग ऑर्डर, मैंने बताया था, कल भी हम बात कर रहे थे, 2 3 दिन से हम डिसेंडिंग की बात कर रहे हैं, बड़े से छोटा, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, हाईएस्ट टू लोवेस्ट। तो कभी भी हम किसी भी वैल्यूज को हम लिखते हैं, ठीक है, अगर आपको इक्वेशन कैसे भी गिवन हो, यू शुड फर्स्ट फॉलो दिस रूल। आपको पहले उस इक्वेशन को हाईएस्ट टू लोवेस्ट में लिखना है। लाइक लेट्स से, अगर मैं आपको इक्वेशन ऐसे दे रहा हूँ, 4x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 6 प्लस x स्क्वायर प्लस 2
एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपको ये इक्वेशन दे दिया, ठीक है, कैसे लिखोगे इसे? आपको इसको फॉलो करना है पैटर्न, एंड आपको हाईएस्ट टू लोवेस्ट में से लिखना है। लेट्स से आपको ऐसे लिखना है इसको, माइनस एक्स टू द पावर 6, बिकॉज हाईएस्ट वैल्यू एक्स टू द पावर 6 है, फिर उससे लोवेस्ट, प्लस एक्स टू द पावर 5। अब कुछ लोग पूछेंगे माइनस क्यों लिखे हो, देखो यार उसके साथ जो साइन हो तो लेके जाएंगे ना आगे, वो अगर माइनस है तो माइनस ही जाएगा, राइट? वही बात होगी, सुमित के साथ कुछ टाइटल होगा तो सुमित टाइटल लेके जाएगा, अपने टाइटल थोड़ी छोड़ के जाएगा। प्लस 4 x to the power 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपको इसमें इस ऑर्डर में लिखना है। ये हम पढ़ेंगे बाइनोमियल में, जब हम हायर ऑर्डर इक्वेशंस पढ़ने जाएंगे, हायर डिग्री वाले, तब पढ़ेंगे। बट अभी फिर भी फॉर बेटर नॉलेज आपको समझा दिया मैंने। होप इट इज क्लियर। भाई प्रेजेंटेशन दिख रहा ना? ये तो कल जैसा नहीं था कि इस प्रेजेंटेशन बाहर, मैं बाहर, आप लोग अकेले बैठ के पढ़ रहे हो खुद से। चलो, अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। तो ये पार्ट तो हो गया। अब जैसे हम इक्वेशंस पढ़ रहे थे, तो इक्वेशन कभी भी होता है, अगर दिस इज वन मोर बेसिक, देन वी विल जंप टू द सम इम्पोर्टेंट पार्ट एंड देन क्वेश्चन। लेट्स से, अगर मुझे एक इक्वेशन दी है, 4x+2 इज इक्वल टू 3, आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो गाइस? आर यू एबल टू सॉल्व दिस इक्वेशन? लेट्स से 4 मत लिखो आगे यार, नहीं तो फिर बोलूंगे 4 क्यों लिख दिया आपने। नहीं निकल पा रहा, 4 लिखने के कारण ही नहीं निकल रहा। चलो, अभी बता दो। निकाल लिए क्या? इसका बता दो भाई, छोड़ो, ये बता दो। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। अगर मैं यही इक्वेशन ऐसे दे दूं, x+2y इज इक्वल टू 3, अब बता इसमें x और y निकाल सकोगे? आर यू एबल टू सॉल्व दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y? हाँ भाई, 5/4 वाले गलत था तुम्हारा, 1/4 था वो। नो। So why you are not able to solve this equation? The reason is simple. You can't able to solve equation because there is two variable. If the equation is with one variable, and they have given you only one equation, like one variable, and they have given you one equation, that is enough to solve. But if there is two variable and they have given only one equation, then we will say this called of equations a special equation. चलो, स्पेशल इक्वेशन की भी बेसिक मैंने यही बता दिया। इसे हम स्पेशल इक्वेशन कहते हैं। बट आप यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज की फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, बिकॉज जितने वेरिएबल्स होंगे उतने आपको इक्वेशन चाहिए होंगे उसे सॉल्व करने के लिए। इट मीन्स इफ यू हैव टू वेरिएबल्स, you must need two equation to get exact value of x and y. Okay, so you are not able to solve with this single equation. Yeah, you will get some values, but there are lots of value, you will get a lots of value. Okay, but if you want the exact value, then you must need a two equation to solve this. Okay, if there is three variables, let's say the equation is like this, minus 3z is equal to 5. Now in this case you need a three similar equation to solve this, or you just need three equation, no matter how many variable is there. Okay, you need three equation to solve this. Agree guys? I hope this part is clear to all of you. If you have doubt, do let me know. अभी बोरिंग सा लग रहा होगा, बट टू बी ऑनेस्ट, ये अगर नहीं आता तो बाद में पछताओगे। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ गाइस, ये छोड़ के अगर तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। ओके, सो इफ इट इज क्लियर, लेट्स गो अहेड। तो बस यही था मुझे बताना। तो अब समझ गया कि जितने वेरिएबल्स रहते हैं उतने हम इक्वेशन चाहे उसे सॉल्व करने के लिए, टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू। नाउ लेट्स कम टू द इम्पोर्टेंट पार्ट। अच्छा, एक पेज था क्या एक्स्ट्रा?
Okay, so as we told you, as I told you, the equation should be, let's say there you have two variables, 2x plus 4y is equal to 6, and 3x plus 5y is equal to 8. There is a two equation. Now, whenever you solve, you will get an exact answer. Okay, sometime you are not able to get the answer. Reason behind, because of there are some conditions. If you follow, like, it must be followed, then you will get an answer. And what is that? Let's see here, the types of solution. This is important, not very important, but कैट वाले कभी भी कुछ भी फेंक देते हैं आपके पास. आप कैट के पेपर जा रहे देने और आपके सामने एकदम से आ गई है, एंड यू आर लाइक, ओ शिट, व्हाट इज दिस, ये क्या है. तो वहां पे टेंशन ना लेने के लिए इसमें पहले ही बता दे रहा हूँ. सो लेट्स से इफ द इक्वेशन इज लाइक दिस, if the equation is like this, ax plus by plus c is equal to 0. Let's say a1, b1, and c1. And if you have another equation, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Now, it is not necessary that you will you will definitely get the answer if you have two equations. There might be possibility you are not able to get an answer from those two equation also. Answer means integer answer. You might be get some variable like a 1 by 2 or blah blah blah. Okay. So why this will happen? See here. If a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then you will get a unique solution. Why it is? देखो, जब भी a1 upon a2 और b1 upon b2, ये इसलिए, this is just a method, a condition to find easily for a quick way. Like, if it is mentioned like the solution is unique solutions, then you can simply use this method to get a value of a b c whatever needed. Okay, so this is the value. What happened for unique solution? When the two lines cut each other at a single point, at a single point, then only you will get a unique solution. And so to find the value of unique solution, or to just say found it ki it is a unique solution or not, what you can do, you can use this condition to know that the solution, like the equation given to me, they have unique solution or not. So to find this, you just simply have to see a1 by 2 is not equal. If it is not equal to b1 by 2, it means the solution is unique solution. If if अब खेल उल्टा हो गया, हो सकता है कि आपका जो दोनों लाइन है, लेट्स से दिस इज वन लाइन and the second one line is also overlap to the same line. ओवरलैप था भाई, नहीं हुआ ओवरलैप, सॉरी गाइस. ओवरलैप कर लियो इसको. ठीक है, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं. इन दैट केस यू विल गेट अ लॉट्स ऑफ सॉल्यूशन. देखो, यहाँ भी ओवरलैप किया तो यहाँ भी एक वैल्यू मिलेगा, यहाँ भी एक वैल्यू, यहाँ यहाँ यहाँ, इनफाइनाइट. देयर इज इनफाइनाइट वैल्यू इन दिस, इन बिटवीन. सो इन दैट सिनेरियो यू विल गेट दिस, लाइक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. अब ये कैसे पता चलेगा? If a1 is equal to a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, and it is equal to c1 upon c2, then you will get infinite solutions. It means बहुत सारे सॉल्यूशन है, सिर्फ सिंगल सॉल्यूशन नहीं है. सिमिलरली, अब इतना कुछ हो ही गया तो नो सॉल्यूशन भी तो हो गई, जहाँ पे सॉल्यूशन हो ही ना, होता है. लेट्स से आपको दो इक्वेशन तो दे दिया और आप खुश कि या दो इक्वेशन है, मैं तो सॉल्व कर लूंगा इजीली. बट पता चला भाई एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन कहीं यहाँ पे ऐसे जा रही है. कहीं पे ओवरलैप नहीं हो रहा, कहीं पे कट नहीं हो रहा है. ठीक है, ये ऐसे सीधा सीधा जा रहा है बेचारा, एंड ये ऐसे कुछ जा रहा है. माइट भी कहीं कट कर दे तो रुक जाओ, उससे भी बेटर कर देता इसको. तो बोलेंगे यार कहीं तो कट करेगा ये, वो पैरेलल में जा रहा है. खुश. पैरेलल में तो ओवरलैप नहीं कर पाएगा. सो इन द सिचुएशन इफ द यू हैव गिवन अ टू इक्वेशन एंड दोज आर पैरेलल टू ईच अदर, in that scenario you will not get any solution, and you will get no solution as the answer. Hope it is clear. क्वेश्चन में दिखेगा नो सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, थ्री सॉल्यूशन, इसलिए पहले ही बता दिया भाई. एंड ये पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, ये थोड़ा देख लेना, यू शुड गो थ्रू इट एंड इसे पढ़ लेना. ठीक है, आगे बढ़ू.
कितने लोग हैं जिंदा? मुझे छोड़ के कितने लोग जिंदा है, चलो अटेंडेंस लगाओ। क्या मतलब टाइगर जिंदा नहीं है? अवनीत, श्वेता, चलो अंशु, समर भी जिंदा, चलो दैट्स ग्रेट। नाउ लेट्स डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चन। एंड जितना बेसिक था आई थिंक मैंने कवर कर दिया। कुछ मैं शायद भूल गया होगा, अगर इन केस इफ आई माइट अनएबल टू लाइक रिकॉल, तो मैं उसको क्वेश्चन के साथ आगे में दिखेगा ही, तो हम सॉल्व करेंगे वहाँ पे। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है दिखने में। क्वेश्चन इज लुकिंग वेरी गुड बट डोंट नो हाउ गुड इट इज। So now it is here given. I have two equations. First one is 3x minus 2y equal to 6. Second one is px plus 9y is equal to n. Find the value of p if the above equation has no solution. तो इसके लिए मैंने बता दिया था वो ऊपर में कि भाई क्या है। अब लोग पूछेंगे बताओ जरा नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन था। फर्स्ट राइट द इक्वेशंस। लेट्स we have equation like 3x minus 2y is equal to 6. Second equation is px plus and 9y is equal to n. In this scenario, I have to, it is given that this two equation has no solution. No solution means ये दोनों कैसे पैरेलल चलते जा रहे हैं। दोनों कैसे चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं, इसलिए वहां पे सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। ठीक है। एंड इसके लिए आप क्या चेक कर सकते हो। इट इज गिवन दैट इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 but it is not equal to c1 by c2, then only we will have, in this scenario we will have no solution. बी, अभी तक नो आइडिया। बी मैं सॉल्व नहीं किया, मैं तो अभी आपको समझा रहा था। और हाँ गाइस, फॉर डिस्क्लेमर काइंड ऑफ थिंग, मुझे नहीं पता आंसर क्या रहता है। मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, मैं आपके सामने ही करता हूँ। और आई हैव आंसर की बट वो पता नहीं कहाँ पे है। तो जो भी होता है आपके सामने होता है, गलत भी होता है तो मैं सही भी आपके सामने ही कर लेता हूँ। शायद LRD क्लास में देखा होगा, जो LRD में रहते हैं, है ना अपनी अंशु, आपको तो पता ही होगा। Okay, so let's say B. Lots of you saying a B. Let's say what is this? What is the solution? तो मुझे पूछा क्या है, find the value. What is the value of n? Okay, what also what value of n is not acceptable? Not acceptable. They are asking me not acceptable. It means वही बात है भाई, n is not equal to पूछ रहा है कितना आएगा। Okay, let's find the n is not equal to. So to find n is not equal to, we I have to find first the value of p. Okay, so by this you will get, ये आपका A1 बन गया, ये आपका A2 बन गया। ठीक है, A1 ये बन गया A2, ये बन गया आपका B1, ये बन गया आपका B2, ये बन गया आपका C1, ये बन गया आपका C2। कोई दिक्कत ना है गाइस, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना? वो तो बोल देना। सो 3/p इज इक्वल टू -2/9। ओके, लेट्स सॉल्व दिस टू गेट अ वैल्यू ऑफ p फर्स्ट। मैंने सिर्फ इतना पार्ट लिया है, ठीक है, बिकॉज आई वांट वैल्यू ऑफ p ऑल्सो। So from here I will get the value of p should be क्या आएगा, 327 by 2 minus 27 by 2 is the value of p. Hope you will got this answer. And इसको अगर हम और सॉल्व कर ले तो ये बन जाएगा 13.5। ठीक है, तो अब एलिमिनेशन के थ्रू अगर जाते हैं तो यहाँ पे देख लो, ये तो चला गया, माइनस है इसलिए ये भी चला गया। आई लेफ्ट विथ बी एंड सी। लेट्स कम फॉर द further part. So further part should be my that I will take took like a -2/9
is equal to 6 by n. So 2 3s are 6. ठीक है. So my n should be 3 9s are 27 minus 27. So seeing this, यहाँ minus 27 नहीं है, तो my answer should be option B. Yeah, so you guys are correct. The answer is option B. किसी को इशू है यहाँ पे? कोई भी इशू है? शर्माना नहीं है, शर्माना नहीं है भाई, यहाँ पे हमारे सेशन में तो शर्माने का नहीं. हम नहीं शर्माते यार गलत करके, इतने बेशरम है सोचो. तो आप कैसे, आप शर्माओगे तो कैसा होगा, अच्छी लगेगी. आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी, आई होप, आई विल थिंक यू शुड ट्राई फर्स्ट. इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है? चलो ये भी बता देता हूँ. इनफाइनाइट कब होगा? जब सारे वैल्यूज कैसे होंगे? इक्वल होंगे. a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. सॉल्व करो. समर, आप हैंड रेस क्यों कर रहे हो भाई? यही पूछ लो. I will take a Q&A at the end of the session if you any one of you have doubt. तो once I like रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद आपका Q&A जो भी है वो मैं वहाँ पे सॉल्व करूँगा. ठीक है. Q&A means the question answer like related to the CAT preparation, like मैं अभी चालू किया, मैंने अभी चालू की, तो क्या होगा क्या नहीं, ये सारे क्वेश्चंस हम एंड में करते हैं. सी. ओके. तो वन पीपल इज सेइंग सी, अदर्स. अच्छा, हाजिरी लगा रहे थे क्या? चलो बढ़िया है. बाकी को क्या हो गया? ओके. अभ्युदय, प्रतिष्ठा, बोथ आर सेइंग सी. कोई तो बी और डी बोल दो. ओके. सी. अंशु ऑल्सो सी. ओके. तो सी आ रहा है मैक्सिमम लोगों का. दोज आर सॉल्विंग ग्रेट. लेट मी सॉल्व ऑल्सो. मुझे ही पता चले सही में सी है कि क्या है. सो ए बाय बी, इधर यू कैन राइट द इक्वेशन फर्स्ट. ये दो इक्वेशन आप लिख लो जब आप सॉल्व कर रहे हो तो, बट इट इज विजिबल टू मी, आई वुड लाइक टू राइट इट हियर. लाइक 1/-4 इज इक्वल टू 9/n इज इक्वल टू 12/k. इजी था भाई, पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर इसको इसके साथ सॉल्व कर दो, खत्म. यहाँ सबको मिल जाएगा. n शुड बी इक्वल टू माइनस 4 9 36. ओके. एंड इफ यू सॉल्व विद दिस, लाइक अगर आपने यहाँ से ऐसे ले लिया, एंड इज इक्वल टू 12/k, फ्रॉम हियर यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ k, एंड दिस इज नथिंग बट 12 into 4 like a -48. If you add these two, you will get answer -84. Yes, the option C is the correct. You are getting a गजब. अवनीत क्या गलती किया? What mistake you have committed here? अच्छा, ये प्लस में आया क्या आपका? ये प्लस में आया होगा, दैट्स व्हाई. यू यू पुट -36 इन द इक्वेशन. लेट्स से, चल आपकी मेथड से कर लेते हैं. लेट्स से. Okay, once I found this 36, so now my equation should be 9/-36 is equal to 12/k. 9 ones are 9, 9 fours are 36. At the end, I would receive 1/-4, which is equal to 12/k. And from here, you will get the value of k should be -48. Now,
क्या पूछा उसने, n प्लस के पूछा है ना। n की वैल्यू क्या है, -36 प्लस -48। अगेन हियर -36 प्लस माइनस माइनस, इसका वैल्यू तो आएगा 84, विच इज -84। हाँ तो n के प्लेस पे तो -36 रखे तो सेम। ओके यू प्लेस्ड प्लस। तो भाई प्लस माइनस देखो देखो गाइस, यू शुड, ये गलती मत करना, मैं करता हूँ बहुत बार। प्लस माइनस देख लेना। ठीक है, इजी क्वेश्चन, नॉट वेरी टफ। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं पहले समझा देता हूँ, फिर आप सॉल्व करना। रोप इज 64 मीटर लॉन्ग। चल एक काम करो, पहले सॉल्व ही कर लो, मैं बाद में समझाऊंगा। लेट्स सॉल्व इट फर्स्ट। ओके तो किसी का वैल्यू 8 आ रहा है, किसी का, अच्छा किसी का बी आ रहा है, किसी का 8 आ रहा है, सी भी आ रहा है, वाह। अच्छा 8 सी है, ठीक है। अंशु का B6 भी आ रहा है। अच्छा, और कोई बचा है? एवरीवन ट्राइड और समवन लेफ्ट? गौतमन, व्हाट अबाउट यू? आंसर नहीं बता रहे हो आज आप। लेट्स रीड क्वेश्चन क्या कह रहा है। रोप इज 64 मीटर लॉन्ग। ठीक है, एक रस्सी है, रोप मतलब रस्सी, ओके। फॉर हिंदी पीपल रोप मीन्स रस्सी, और फॉर इंग्लिश पीपल रोप इज रोप, ओके। इन शॉर्ट, द मोस्ट ऑफ द पीपल राइट नाउ यूजिंग रोप फॉर फांसी, ठीक है, जो कि नहीं करना चाहिए। जोकिंग गाइस, ओके। 60, a rope is 64 मीटर long, so something is like this. Rope is 64 मीटर long. It is cut into three pieces. Okay, इसको तीन pieces में कट किया गया है, and the longest piece is three times. Okay, let's cut it in three pieces. Okay, and yeah, ये जो मैंने कट किया है, this is for reference, not for the measurement. So it is a kind of disclaimer. बोलना मत कि आपने तीनों को इक्वल में काट दिया। So longest piece is three times as long as the middle-sized piece, and the shortest piece is 34 meters shorter than the longest piece. Okay, so the longest piece is three times as long as the middle-sized piece. So let's say this is a middle-sized piece, X. ठीक है, मिडल साइज्ड पीस को मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने मान लिया X। तो जो मेरा लॉन्गेस्ट होगा, लेट्स से दिस इज माय लॉन्गेस्ट पीस which is a three time of X. Okay, and the shortest one is 34 meters shorter than the longest piece. It means this is a 3x minus 34. ओके, लॉन्गेस्ट जो है, लॉन्गेस्ट कौन सा है, 36। लिख देता हूँ भाई, नहीं तो बोलना मत। ये है मिडल वाला, मिडल साइज, दिस इज माय लॉन्गेस्ट, दिस इज माय शॉर्टेस्ट। ओके गॉटचा। एंड द सम ऑफ द ऑल दिस इज 64। सिंपल है भाई, कुछ तो करना ही नहीं था यहाँ पे। क्या करना है, इनका सम कर लो, द 3x प्लस एक्स प्लस 3x माइनस 34, it should be equal to 64. Now simple. The value of this is 7x. If you minus this from here, you will get around 30. So x should be, ये क्या हो गया? The shortest piece is 34 meters shorter than the longest piece. 34 meter. What mistake I did? अरे शिट शिट शिट, मैंने माइनस कर दिया, लोल। वही तो बोले, मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा, मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे, ये एडिशन था भाई। Yeah, the 7x should be equal to, you add here, it will become a 98.
So this will nothing but मैंने भी ये किया था सर। अच्छा, अंशु ने भी माइनस कर दिया था। यार स्टिल क्या था इसका? लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस पूछा है ना। सो एक्स शुड बी, एक मिनट रुक जाना। ये 14 हो गया। मुझे एक्स नहीं पूछा है बट ठीक है। इसने मुझे पूछा क्या है? शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट मीन 3x - 34। सो 3 × 14 -34, so you will get your answer. So from here if you solve this you will get answer। अब यहाँ पे किसने गलती किया? इजी तो है। क्या आ रहा है आंसर? 14 अभी भी आ रहा है क्या? अच्छा, जिसने ए बोला था, किसने ए बोला यहाँ पे? ये जिसने भी ए बोला द ब्लंडर, इसने बहुत बड़ा ब्लंडर किया। ठीक है, ए बोल के इसने ये मार्क कर दिया होगा 14 समझ के एक्स। तो वो नहीं करना है। तो यहाँ पे सिंपल करना है, 3 × 14, 42, 42 -34। ये कितना आ जाएगा आपका? 8। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, यहाँ पे किसी को डाउट है? ये तो इजी क्वेश्चन था। लैंग्वेज देखो गाइज, यू शुड मस्ट टेक केयर ऑफ द लैंग्वेज, बिकॉज इफ यू आर अनेबल टू लाइक गॉट लाइक अ लैंग्वेज, अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, गलती हो सकती है। ठीक है, मैं खुद भी करता हूँ। तो आप भी करिए, शायद कर सकते हो। मैं बट नहीं चाहता कि आप गलती करो। ये शिट मिस्टेक जल्दी जल्दी में कैट में हो जाता है। दिस इज द इजी क्वेश्चन। आई विल गिव यू 1 minute ऑन कॉल। यू हैव 1 minute फ्रॉम नाउ। डू लेट मी नो द आंसर। ओके, सी, बी। भाई डी क्यों नहीं आ रहा है? डी किसी का नहीं आ रहा। नो वन। अभ्युदय सी, अंशु बी, what about others? Avneet, Gautam, Shweta, Pratishtha, what you guys are doing? Summer? Okay, अंशु सी, अब सी आ गया। ओके, लेट्स सी। ये समझा पहले इसको इक्वेशन बना पाए आप लोग? सी, what it is mentioned here, the cost of 3 books and 12 pens, it means the cost की बात चल रही है। We have 3 books, for books we will take a B plus 12 pens, let's say P is equal to 27. If the cost of 2 books plus X pen is equal to 18, find the value of X. Okay, C is the answer. So how you are going to solve this? So either what you can do, if you are like not that smart enough to found what exactly going here, or you can simply do what the nature of the solution I have mentioned here. Check this. Check this. You can simply do a1 by a2 is equal to b1 by b2, and then you will go ahead. Okay. If not, if you are little bit like a person, like a lazy person like me, we will try to solve it without a pen paper. And what we can do simply, I will see it is a 3b, is a 12, it is 27, and all is the multiple of 3. I would simply make it, I will divide it by 3. What I can do, I will divide it by
If I divide it by 3, I will get a b plus 4p is equal to, I will get here is 3 9s are 27. Okay. Once I got this, I see here it is 18. I will simply, what I can do now, I can multiply it by 2. It is 18, it is 8p plus it is 2b. That's it. So if we compare these two equations, you will simply get x is equal to 8 and just mark it, go ahead. ऐसे ही किया गया सबने, और any other method you have you used? जिंदा होने का सबूत दो सब लोग, एक बार सब लोग प्रेजेंट प्रेजेंट बोलो, जिंदा होने का सबूत चाहिए मुझे। पीपी, हाँ पीपी लिख दो, ये बढ़िया है। समर जिंदा है, अवनीत जिंदा, अंशु भी जिंदा, प्रतिष्ठा भी जिंदा है, चलो श्वेता भी जिंदा है। अच्छा लगा सब सुन के सॉरी, सुनने तो आया ही नहीं कुछ देख के। ये क्लियर है, और यू आर स्टक इन बिटवीन हियर। एक और चीज बताओ, मैं कितना बोरिंग पढ़ा रहा हूँ, एंड व्हाट इंप्रूवमेंट शुड आई नीड। ओके, यू स्टक हियर अवनीत। अब पता चला कैसे सॉल्व करना था। पता चला हो तो अच्छी बात है यार। चलो, ऐसे सॉल्व करना पड़ता, इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, मतलब पूरा डीपली अगर आप सॉल्व करोगे, इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी स्टेप, देन it will consume your time. It is a cat. Okay, and if you like, if everyone is there, like understood this question, we'll go ahead. ये आप कर लेना होमवर्क, गर्ल वाल बच्चा बच्चा बना देना यार, easy है, not very tough. Let's come to the digit one. The difference between, okay, let's have a try. Have a try, use your knowledge. I will give you 2 minutes, 2 to 3 minutes. Take your time and give me an answer. I don't know what is the exact answer, but you can solve, and I am also solving it in my pen with my pen and paper. Okay, so Avneet 73, Abhyuday 73, Gautman 73. Great. You are getting the answer 73, 73. Anyone else who left to solve, or those who stuck in between? कोई है? नहीं है तो चलो. Let me solve it once, so that those who are unable to solve, they will get a clarity what they are doing or what the mistake they are committing. So yeah, guys, answer is 73. You are right. But process देख लेते हैं एक बार. So बोल क्या रही है? The difference between digit of two digit number is a is 4. It means two digit number is what? Two digit number ऐसा मतलब दो digit होगा, यहाँ a होगा, यहाँ पे b होगा. But if you know, this is my unit place, this is my tens place. टेंस हम क्यों कहते थे? टेंस क्यों कहते हैं? टेंस बोले टेंस, जो भी है, इसे हम टेंस कहते हैं. नेक्स्ट जो आएगा उसे क्या कहेंगे हम? यहाँ पे कुछ अगर मान लेते हैं एक्स आ गया, तो इसे क्या कहेंगे? 100. इसके आगे कुछ अगर वाई आ गया, तो इसे हम कहेंगे 1000. ओके, ये तो आपको पता ही होगा. नोट में गिने होंगे, जितने जीरो बढ़ते जाते हैं तो हम पीछे से गिनते हैं.
Okay, we don't count it from the starting. Like you can't say, why not this is unit, why not this is tens? This should be unit and this should be tens because we will count from here. So no, we will count from the end. Okay, for the kind of information, those who are not from maths background and those who are fear of a maths and they haven't learned these things. So for them, यहाँ से पढ़ना है, ठीक है? रिकॉर्डिंग देखने के बहुत गरी आएंगे मुझे इस चीज के लिए, ऐसा बोल दिया मुझे. So yeah, tens means what? It is nothing but 10 into a. That's why we said tens. If something is here, as I mentioned, x, I will say 100. This should be 100. Okay, actually, this claim. So if 100 has, this means 100 into x. This is what the means. Unit means what? Unit means 1 into b. Hope it is clear to all of you. This basic part is clear. If not, do let me know. If I'm asked you in an equation, let's say it's a C, B, D, A. How could you write a C? C is nothing but 1,000 into C, right? Plus, what is the mean B? B is nothing but 100 into B. Plus D, D is nothing but 10 into D. Plus A is nothing but 1 into A. When you add these all, you will get a value. CBDA, right guys? So this is the basic. That's why I explained you here. Now let's come to the question. The question is saying the difference between the digits of two-digit number. Let's say two-digit number should be, चलो यहाँ पे लिख देते हैं. Two-digit number is AB. AB is my two-digit number. Okay. And the difference between the digit, they are saying digit ka difference, like A minus B. You can say any one B. I don't know like which one is bigger or smaller. So that's why I assume that A minus B is equal to 4. It is a digit. The sum of the number and the number formed by reversing the digit. It means the sum of the number means AB plus the sum of the reversing. Reversing the digit means there is a reverse the digit, like a B come to the tens place and A come to the unit place, right? So if we sum these two, you will get 110. If you sum this, you will get 110. Now, as I told you earlier, if we break down this, you will get a 10A plus B plus 10B plus A. This should be equal to 110. If we sum up this, you will get 11A plus 11B is equal to 110. And if you solve ahead, you will get A plus B is equal to 10. 11 क्या कहाँ चला गया भाई, मैंने 11 से डिवाइड कर दिया. Okay, if you divide this by 11, you will get this answer. Okay, so now I have two equations. These two equations, from these two equations I will solve easily and I will get a value. Let's say A plus B is equal to 10 and A minus B is equal to 4. Simply because the sign is different, like here you can see it is a plus, it is minus, I simply add both of the equation. And if I add this equation, I will get a 2A. Because of plus minus, it will get cancelled and I will get sum of these two is 14. So from here you will get A is equal to 7. Similarly, you can put value of A anywhere, like you can put it here. So you will get A plus B is equal, like in place of A, just simply write 7 plus B. क्या कर रहा भाई, क्या कर रहा तू? Okay, so from B here is equal to 3. Now the issue is there is possibility like the value should be 37. There might be possibility. If why I'm saying 37, because if the case is like this, B minus A should be equal to 4. Is it also possible? It is also possible, right? So in this case, the value should be 37, right guys? And if we choose this case, then the value should be 73. So we can't mark the answer if there is an option. And even though in theta also we can't fill it. That's why they have mentioned the number is more than 60. What they mentioned, the number is more than 60.
And because the number is more than 60, so we have only one option which is more than 60 is 73. So my answer should be 73. Hope it is clear. क्या हुआ तेरा वादा, कहाँ गए भाई? सब जनता सो गई। गाइस मेरे इसके बाद भी दो बैक टू बैक मीटिंग है, फिर भी बैठा हूँ मैं। थोड़ा क्या बोलते हैं, हमारी सहायता करो। ठीक है, हमें मोटिवेट करके हम पढ़ाए आगे। तो यू हैव टू क्वेश्चन सीट, यू कैन सॉल्व इट बिफोर द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, ये दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और है क्या अच्छा खासा। यार सिमिलर क्वेश्चंस है, सॉल्व करना नहीं आया तो हम नेक्स्ट सेशन में इनिशियल 30 मिनट वी विल टेक अ डाउट। ठीक है, एंड आई विल ट्राई टू कीप इट इज अ डाउट सेशन। एंड फटाफट हम पहले 30 मिनट्स में डाउट 24 क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए आपको दिया, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया हाउ टू सॉल्व। सारे नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि सारा मैं 50 क्वेश्चन दूँ तो 50 में सॉल्व करूँ। जो सबके कॉमन डाउट होंगे उसे करेंगे। ठीक है, जो इजी होंगे वो तो खुद समझ जाओगे आप। इन द डिजिट ऑफ टू डिजिट, या आंसर की आई विल शेयर विद आंसर की ऑल्सो। मैं आंसर की मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। ओ यार रुक जाओ, अच्छा क्वेश्चन था। जा, एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, चलो ट्राई दिस क्वेश्चन। दिस इज समथिंग डिफरेंट। आई विल टेक 3 more क्वेश्चन टुडे। तीन नहीं, देख लेते कितने क्वेश्चन है, पहले इसे ट्राई करो। ओके, सो यू आर गेटिंग 3। ओके, 3 इज द आंसर। सबका 3 आ रहा, मुझे 2 पीपल। बाकी को क्या हो गया भाई आज? इजी तो है, टफ तो कुछ मैंने लाया भी नहीं आज। यस, 3 आ रहा श्वेता, ग्रेट श्वेता। Okay, sum of two-digit number and a number formed by reversing its digit is equal to 88. Again, the same thing. Sum of two-digit numbers. Two-digit number means अभी एक मैंने बनाया था, ए बी जो है ये मेरा 2 डिजिट नंबर है, इनका सम बोल रहा है। नाउ इन द लास्ट क्वेश्चन दे हैव टोल्ड मी द सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, एक एक जो पॉइंट था अगर मैं मिस कर गया बताना। ये मैंने बी ए माइनस बी वाई आई रिटर्न दिस बिकॉज दे हैव मेंशन डिजिट्स। डिजिट्स मीन्स नॉट 10A बट ए माइनस बी, ऐसा हो बोल रहा है डिजिट। बट हियर दे हैव मेंशन आल्सो, वहां भी मैंने बता चुका ऑलरेडी बट फिर भी रिपीट कर दिया टेलीकास्ट। ओके, सो यहाँ पे भी 2 डिजिट नंबर है, इसका रिवर्स करके जो कि उनको ऐड किया गया। ओके, सो वी हैव टू नंबर लाइक वन इज 10A प्लस बी एंड we have summed up with the 10B plus A, and the is equal to 88. Okay, and if you sum it, we'll get a 11A plus 11B is equal to 88. It is nothing but A plus B is equal to 8. यहाँ तक तो आ गया होगा सबका। शुड आई रिपीट? श्वेता क्या रिपीट करना? वो डिजिट वाला क्या बोला? ओके, देखो वो डिजिट वाला जो मैंने बोला,
डिजिट मैंने ये बोला यहाँ पे मेंशन था, इट इज मेंशनड हियर, द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 4। द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ए माइनस बी, डिजिट के बीच का डिफरेंस मैंने दिया यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या कहते हैं यहाँ पे डिजिट के बीच का, लाइक मेरे पास टू डिजिट नंबर अगर ए बी है तो इनका डिजिट कौन कौन सा है, डिजिट इज ए कॉमा बी। तो इधर दिस शुड बी माई क्वेश्चन, दिस शुड बी माई, ठीक है, या तो मैं ए माइनस बी इक्वल टू 4 लिख सकता हूँ, या फिर मैं बी माइनस ए इक्वल टू 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं दोनों क्यों लिखूंगा, बिकॉज मुझे पता नहीं किससे आंसर आ रहा। तो मैंने जब भी इसे लेके सॉल्व किया था तो आई विल गॉट द आंसर दिस। इवन तो अगर आप इससे भी सॉल्व करोगे यू विल गेट अ सिमिलर आंसर। यू कैन ट्राई इट ऑन योर पेस, जब बाद में आप सॉल्व करो एक बार ट्राई कर लेना। वही मैं कह रहा था, बट यहाँ पे क्या मेंशन है, यहाँ मेंशन है द टू डिजिट नंबर, सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें फर्क है, डिजिट्स सम अलग होता है और सम ऑफ टू डिजिट नंबर अलग होता है। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ सच, ओके, नंबर ऑफ सच नंबर्स इन विच द टेंथ डिजिट इज ग्रेटर देन द यूनिट डिजिट इज। बहुत बढ़िया यार, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो आपने यहाँ तक तो निकाल जाऊंगा सबने, ए प्लस बी इज इक्वल टू 8, ये तो आ ही गया होगा। उसके बाद क्या करना है, नाउ दे आस्क्ड यू, अब हो सकता है ना अगर मैं इसको 0 रख दूं ये मेरा 8 हो जाएगा, अगर मैं इसे 1 रखूँ तो ये मेरा 7 हो जाएगा, इसे मैं अगर 2 रखूँ ये मेरा 6 हो जाएगा, इसे मैं अगर मैं 4 सॉरी 3 रखूँ यू विल गेट अ 4। ओके, क्या कर रहा सुमित, क्या कर रहा, 3 रखूँ तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इफ आई राइट 4 हियर यू विल गेट अ 4 हियर। नाउ अगेन इट विल गेट अ रिवर्स, ये उल्टा हो जाएगा। रिवर्स मीन्स उल्टे ऑर्डर में लिख दो, दिस इज 5, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, sorry, this is 6, this should be a 2, this should be a 7, this should be a 1, this should be a 8, this should be a 0, right? So what they ask me, in which the tenth digit is greater than the unit digit, it means tenth digit is what, tenth digit क्या है, a should be greater than b, this is what the condition is, in which the tenth digit is greater than the unit digit, it means I have to count only those numbers जिसमें a बड़ा होना चाहिए b से। क्या यहाँ पे बड़ा है ना, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ देख सकते हो, yes, 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 so answer should be option A, that is 4। आप लोगों ने क्या लिखा था, सॉरी, माय बैड, या नॉट माय बैड, मैं सही हूँ। क्यों भाई, सबका 3 आ रहा था ना, क्या हो गया, होश पत्ते उड़ गए। उसने कहाँ मेंशन किया कि सेकंड डिजिट जो फॉर्म हुआ वो भी टू डिजिट नंबर बना, हैव दे मेंशन्ड एनीवेयर, इफ यू सी बाय द लॉजिक, बिकॉज यू ऑल लाइक all of you have said 333, right? Have they mentioned like the first, like the digit of the number, there is no zero? नहीं, ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया है। अगर कहीं मेंशन होता तब ठीक होता, बिकॉज यू कैन से 80, इट इज अ टू डिजिट नंबर, इफ यू रिवर्स इट यू विल गेट a 08। Is there any issue? Have they mentioned that the second number the form after reversing these also two digit number? If it is mentioned anywhere like the number form by reversing is also two digit number, then you should not count this one. Hope it is clear, like most of you have didn't counted this number, agree or not? ओके, सो यही गलती होती है, सेम गलती मैंने भी किया था इन कैश 2023। चलो बताया तो क्या था वहां पे, इंटीग्रल सॉल्यूशन था पूछा, इंटीग्रल सॉल्यूशन मींस इंटीजर्स, और मैंने सारे सॉल्यूशन जितने भी थे ऑल सॉल्यूशंस मैंने 5 मार्क कर दिया, जबकि आंसर था ओनली 3, मतलब आंसर था इंटीग्रल सॉल्यूशन सिर्फ वहां पे 3 थे। तो दीज आर द मिस्टेक आई ऑल्सो कमिट, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना, आप मत करना ये, तो 99.99 से फिर 90 पे गिरोगे आगे, कुछ भी हो सकता है।
मतलब 99 से भाई 99 छोड़ दो, 99 से तो 90 पे गिर जाऊंगा। 3-4 मार्क्स में बहुत लंबा जंप हो जाता है। होप इट इज क्लियर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन इज अ गुड वन। आई वुड रिकमेंड इट, ये सॉल्व करना एज अ होमवर्क। ठीक है, ये भी होमवर्क रखो, इजी है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। नहीं आया तो कल हम करवा ही देंगे। ट्राई दिस, हैव अ ट्राई। एक मिनट देखने दो आगे क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है क्या? अच्छा, एक है, एक दो बढ़िया क्वेश्चन अभी भी है। ट्राई दिस, फर्स्ट ट्राई दिस। अरे मैं म्यूट पे बोल रहा था इतनी देर से। क्या आया आंसर? डी। डी 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 डी। ई नहीं आ रहा किसी का? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अवनीत का अब ई आने लगा। अरे मैं तो जोक बोल रहा था ना, ऐसा सीरियसली ले लिया क्या? मुझे नहीं पता आंसर क्या है। लेट मी सॉल्व। ओके, डी बाय मिस्टेक लिखा था। ओके ओके, सच्ची में ई आ रहा है। चलो चलो चलो, कोई नहीं, देखते हैं। एबीसी इज अ 3 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट दिस। ओके, तो देखो, अब इसे ऐसे तो लिख नहीं पाऊंगा मैं तो कमजोर हूँ भाई ये सब काम है, मैं तो मैं से तोड़ दूंगा इसको। आई वुड राइट इट इन दिस वे, 100A एज आई टोल्ड यू अर्लियर। कैसे लिखते हैं हम इसे? ठीक है, इसका ही मतलब यही होता है, इज नथिंग बट 100A प्लस 10B प्लस C। होप यहाँ तक समझ में आ रहा है। मेरे समझ में आया तो ठीक है, आज मैं लिख रहा हूँ 100A प्लस 10B प्लस C माइनस, ना वाई दिस ब्रैकेट, बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में। 100C प्लस 10B प्लस A, दिस शुड बी 495। ओके, सबका CND आया, सबने डी लिख दिया। गजब। ये बढ़िया था भाई। चलो देखते हैं अब, CND, सब तो CND बोल रहे हैं, मुझे तो पता भी नहीं। ओके, सो इफ वी सॉल्व अहेड, अब देखो, ये तो एज इट इज आ गया यहाँ पे, 100A प्लस 10B प्लस C। बिकॉज ऑफ दिस माइनस, द साइन ऑफ द एंटायर लाइक नंबर इन द ब्रैकेट विल चेंज। इसका प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस 100C। अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या हो जाता है? ये माइनस माइनस प्लस हो जाता। तो गाइस होप इट इज अंडरस्टूड। याद रखना, साइन में ऐसे चेंज होता है। अगेन माइनस प्लस माइनस, again minus plus minus, and this should be a 495. Now if you solve it ahead, you will see plus 10b minus 10b cancelled. What are left now? Again here 100 में से अगर a चला गया तो कितना बचेगा? 99। तो I will write directly 99A. Similarly here also plus c, 100 minus c, okay, minus 100c. So if you solve this plus minus minus, बड़े नंबर का साइन, ग्रेटर नंबर साइन, so it will be minus 99c, which is equal to 495. Okay, and because it is common both of them, I'm assuming it should be multiple of 99. So 99 का कौन सा मल्टीपल है? 99 फाइव, is it? Let me solve 99, 100 फाइव of 99, हाँ सही तो है, 99 फाइव, 99 फाइव 495, या करेक्ट।
बिकॉज 100 5 एंड माइनस कर दिए 5 तो 925. सो ए माइनस थ्री इज इक्वल टू 5. एंड दे आस्क्ड मी ए बी like हाउ मेनी सच 3 डिजिट नंबर्स पॉसिबल. हाउ मेनी, कितना. ये मिल गया मुझे. ठीक है. एंड मोस्ट ऑफ यू हैव सेड सर सीबीडी है, कांट बी डिटरमाइंड. चलो पहले देख लेते हैं यहाँ से ए और सी के कितने वैल्यूज पॉसिबल है. हाउ मेनी वैल्यूज पॉसिबल फॉर ए एंड सी. सो इफ आई पुट ए इक्वल टू 9, क्या मैं 9 से बड़ा रख सकता हूँ? यहाँ पे मैं 10 लिख सकता हूँ. इज इट पॉसिबल गाइज? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. बिकॉज ए तो खुद डिजिट है यार, ये तो 1 डिजिट होगा ना. ये थोड़ी 2 डिजिट बन जाएगा. ठीक है, तो 9 हो सकता है. 9 माइनस दिस शुड बी, दिस मस्ट बी अ 4. इफ इट इज 8, दिस मस्ट बी अ 3. इफ इट इज 7, this must be a 2. If this is 6, this must be a 1. If this is 5, this must be a 0. I think apart from this, there is no possibility. Okay. Also, A and C तो हमने निकाल लिया. What about B? Nothing is mentioned about a B. It means B can take any value. B can take any value 1 to 9. B can take any value from 1 to 9. So, if I put any 9 value here, I will get 1 to 9 should be कितना होता है भाई 1 to 9? अच्छा, 0 भी तो हो सकता है. B can be a 0 to 9. Okay, B can be a 0 to 9, any value, right? There is 10 value. So 10 here, similarly 10 here, similarly 10 here, similarly 10 here, similarly 10 here. How many 10? 1, 2, 3, 4, 5. So answer should be option C, 50. क्या हुआ? सीबीडी नहीं आया मेरा. गाइस दिक्कत है तो बता दो अभी, सदमे में मत चले जाना. इवन यू कैन वॉच ए रिकॉर्डिंग. ओके, यू विल वॉच ए रिकॉर्डिंग व्हाट आई डिड, यू विल अंडरस्टूड. और अभी अगर डाउट हो तो पूछ लो. देखो मैं फिर भी एक बार फिर से ऊपर ऊपर कर देता हूँ, ऊपर ऊपर ओवरव्यू. व्हाट आई डिड हियर. व्हाइट पेन नहीं मिल रहा आज. लेट्स टेक अ व्हाइट वन. Yeah, this one. See, I'm explaining it once again. I think this part is clear. A can take 9, then C will take 4. मतलब 9 minus 4 तो 5 आ जाएगा. ठीक है. अगर here similarly 8 minus 3 should be 5. 7 minus 2 should be 5. 6 minus 1 should be 5. 5 minus 0 is equal to 5. I can't took less than 5. It is not possible. Okay, because it is a 3 digit number. So A can't be less than 5. Similarly, they haven't mentioned anything about B. So it means B can take any value from 0 to 9. There is possibility the one is the value of 0 0 0. पॉसिबल और नॉट. ये भी तो 3 डिजिट नंबर है भाई. ठीक है. और सॉरी 0094 होगा ना, सॉरी. ठीक है. मैं इसकी बात कर रहा था ये वाले केस में. इफ बी इक्वल टू 0 आई विल गेट 904. एंड इफ आई रिवर्स इट आई विल गेट 409. इफ आई माइनस दिस यू विल गेट 495. सो व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल, राइट? सिमिलर वे you can take any value and you will get the answer. So 0, B will take any value from 0 to 9, and from 0 to 9 there is 10 value. How you can solve, how you can find the 10 values? Simply 9 minus 0 plus 1. It means it is equal to 10 value. Number of values अगर आपको count करना है किसी भी number के बीच का, you can simply find this. First last minus like final minus initial plus 1. ठीक है, final minus initial plus 1. किसी भी value, let's if I put ask you a range like a 11 to 24, how many number is there? Okay, including these two. इनको include करें कितने numbers है? Simply what you can do, 24 minus 11 plus 1. So you will get a number of total values. कितने values है? तो 24 minus 11 is nothing but 13 and plus 1 is 14. ठीक है guys, ये part ये भी clear हो गया. तो that's why जो values है कुछ भी आ सकते हैं, 0 से 9 कुछ भी रख सकते हो. तो यहाँ पे आप
एक बार आप 0 रखोगे, एक बार 1 रखोगे, एक बार 2 रखोगे, ऐसे करते करते आप 9 तक रखोगे, तो आपको 9 वैल्यूज 10 वैल्यूज यहाँ से मिल जाएगी। सिमिलरली यही चीज आप यहाँ पे करोगे तो आपको 10 यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से 10, यहाँ से 10, यहाँ से 10, टोटल कितना मिल गया? 50 वैल्यूज। होप इट इज क्लियर। हाँ भाई, क्या हाल, जिंदा है क्या कोई? चलो, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। ओके, ये होमवर्क है, कल कर लेंगे इसको। चलो अभी कुछ देखता हूँ मैं। अच्छा, अच्छा है क्या? ये भी होमवर्क रखो, इसको कल कर लेंगे। Keep some questions for homework. I think I have done lots of questions. इसे कर लेते हैं, चलो इसे कर लेते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके, देन वी विल रैप अप द सेशन। ये लास्ट क्वेश्चन, इसे ट्राई कर लो, सो दैट हमें डाउट में ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, मतलब मुझे नहीं करना पड़ेगा ज्यादा, एंड टाइम वेस्ट नहीं होगा उसमें। मे बी आई विल आस्क सम मोर क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन to the sheet, and then I will share with you the sheet so that you can practice more. And I would recommend those who are watching recording, पूरा शीट सॉल्व करो भाई। उसके बाद अगर डाउट हो तो आप जाके रिकॉर्डिंग देखो, ठीक है? यू विल गेट अ सॉल्यूशन फॉर द सेम। एंड ऑल दोज आर वाचिंग लाइव, ओके, उन्हें भी पूरा वापस से सॉल्व करना है। सॉल्व ऑल दी 14 to 15 क्वेश्चन, सो दैट बाद में डाउट ना हो। Okay, so Avneet got an answer 30. Okay, let's see what is the actual answer. Thank you, Shweta. Do join this, all the sessions. Must join our live. यही हम कहेंगे। अच्छी बात, आपको पसंद आ रही है हमारे काम तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ओके, तो देख लो यहाँ पे क्या कह रहा है ये। ए बी सी डी टुगेदर हैव 250। इट मीन्स चारों को मिला के इतने पैसे है, ठीक है? तो लाइक ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, including all of these, you will get a 250. This amount with C is twice the amount with B. The amount with A, B together is 30 less than what D has, and C has 20 less than what D has. ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, चलो इजीली करते हैं। So C is the twice the amount of B. So as per the discussion, C is the twice amount of B. Hope it is clear. The amount, okay, full stop के बाद the capital रहता है। The amount with A, B together, it means A plus B is equal to 30 less than D, 30 less than D, it means D minus 30. C has 20 less than, C has 20 less than D. Okay, 20 less than D means D minus 20. Okay, I hope it is clear. From here, if I am smart enough to solve, what I can do, I will see it is also in a D, it is also in a D, right? And from here, I simply put like a plus B, I will put D minus 30 in this equation. If I see this equation, so I would directly put A plus B equal to nothing but D minus 30. And C also, here I will have C equal to D minus 20 and plus D, which is equal to 250. And if I solve this, I will get 3D minus 50 is equal to 250. So from here, we will get a 3D is equal to this is minus, यहाँ आएगा तो plus. So it will become a 300. So D is equal to nothing but 100. Okay.
Once D is equal to 100, I could easily get C. I could easily get C. What is C? If I put D is equal to 100, I will get C here from 80 because C is 20 less than D. Okay. Similarly, if C is 80. If I put C here from here, see this. C is 80 is nothing but is equal to 2 times of B. From here, I will get B is equal to multiply में ही इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा divide. So it will become a 40. Okay, guys, I hope you are on the same page, everyone. So from here, now here from here, I will get a. Simply, I would put a plus. इसकी बात कर रहे थे यहाँ लिख लेता हूँ ठीक है a plus 40 is nothing but d is 100 minus 30. So from here I will get a plus 40 is nothing but 70 and a is equal to 40 इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा तो a will equal to 30. Hope you will get an answer. So amount of d a के पास जो है वो 30 है and I think all of you have did this and सही से किया भी है solve. तो अच्छा लगा देख के कि आप लोग सॉल्व कर रहे हैं. सो देयर आर सम क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क. ठीक है कल जरूर नेक्स्ट सेशन में जरूर आना जो कि परसों है. परसों मीन्स क्या है परसों भाई फ्राइडे सैटरडे. ओके सैटरडे को है यू कैन ज्वाइन द सेशन. रीजन बिहाइंड आई एम गोइंग टू टेक अ वेरी गुड क्वेश्चन देयर and these are some question you can try. We will take in the next upcoming session as a doubt. Initial 30 minutes will take all the doubt questions. We'll try to solve all the question in a quick way so that जो भी आपके डाउट वहीं पे क्लियर हो जाए. ओके नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ Q&A. सो एज यू नो Q&A भाई हम रिकॉर्ड नहीं करते तो Q&A में पार्टिसिपेट करना है तो लाइव क्लास में आइए. यस कल DLR क्लास है. कल DLR है मैक्सिमम मिनिमम हम करने वाले कल. सो ज्वाइन फॉर DLR एंड ऑल्सो दिस इज आर ऑफरिंग्स. यू कैन चेक आउट prep.in. ठीक है क्या करवा रहे ऑफरिंग में ये तो आपको पता है कैट प्रिपरेशन करवा रहे. दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ द ऑफरिंग द पर्सनल मेंटरशिप एंड डिटेल मॉक एनालिसिस. अपार्ट फ्रॉम दिस 69 सीरीज मास्टर क्लासेस मास्टर सीरीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें एनरोल करना है तो आप देख सकते हो कोई भी एक प्लान जो भी एक सिंपल से गो टू द prep.in मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल गिव अ फीडबैक हाउ इज द सेशन विल फाइंड इट हेल्पफुल और नॉट. सब कुछ आप बता सकते हो इधर इन द लाइव सेशन में आके चैट बॉक्स में बोल के जाओ या फिर यूट्यूब पे कमेंट करके आओ. अच्छा लगेगा मुझे यूट्यूब पे कमेंट करूँगा तो रीच बढ़ेगा मेरा. सो या ऑल्सो इफ यू आर नॉट इन अ ग्रुप just check the description for the group link. Apart from this, if you have this PDF, simply click here. You will get into our official group. Okay. So I wish you all the very best. Have a good day. Jai Siya Ram.